پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کے کسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار ہی رہتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانش مند انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا یونس تھا، جو ایک زمیندار تھا۔ یونس پورا دن محنت کرتا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جایا کرتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یونس تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا۔ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد باپ بیٹے یونس کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یونس اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یونس کا روٹھا ہوا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یونس کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بزرگ نے یونس کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میں تم پر بوجھ ہوں، فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یونس یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہیں آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد وہ بوڑھا شخص یونس کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جو کہ ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ بوڑھا باپ عمر کے گھر رہنے لگا، لیکن اس کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ عمر کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی اس کے باپ کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور اس سے بات کرنے کی بھی زحمت نہ کرتی۔ بزرگ دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن عمر نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بزرگ خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کراہوں اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر عمر کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی تو بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ عمر بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا اگر آپ تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے بزرگ کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ عمر نے محبت اور توجہ کی بجائے محض ایک معمولی بات کی، جسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ وہ بوڑھا عمر کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ تیسرے بیٹے کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ سلمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ سلمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چھوٹے بیٹے اویس کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا۔ اویس اپنے والد کے استقبال کے لیے بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی محض لالچ کا باعث تھی، نہ کہ اپنے باپ سے محبت۔ اویس نے اپنے باپ کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اویس کو پتہ چلا
कि बूढ़े बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं है, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अवैस की बीवी ने अपने ससुर को बोझ समझा और उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें अपने लिए तकलीफदा समझा। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या खता थी जब खुद के बेटे रूठ चुके थे। अवैस भी अपने कारोबारी अमूर में इतना मगन हो गया कि उसने अपने बाप की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अवैस ने भी इनकार कर दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। उसके बेरहम अल्फाज पर बुजुर्ग ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे आबिद के यहाँ जाने का फैसला किया। आबिद हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो कि एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो भी पैसे कमाता उनसे अपने वालिद के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च लाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी बहुत ईमानदार थी। वो अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत करने लगी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने जब आबिद और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ा अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बाला आखिर बूढ़े की जिंदगी के आखिरी आयाम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। आबिद अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के मर्तबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। आबिद के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके लिए तसल्ली और सुकून का बायस बने। बूढ़े ने आबिद की मोहब्बत देकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। आबिद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे आप हमें छोड़कर जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खाल के हकीकी के पास जाना होगा। आबिद ने उदास लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कामकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला या शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और आबिद से कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा तुम मेरे मरने के बाद बगदाद की फलां गली में जाकर जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाना, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि बूढ़ा वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। बूढ़े ने आबिद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत मिले वो तुम्हारे लिए है, उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। बल आखिर बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गया। बुजुर्ग की वफात का गम आबिद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दिल में एक पनाह खालीपन था और दिल में बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शदीद गम से रोने लगी, क्योंकि उसने बुजुर्ग की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। आबिद ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। आबिद जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर था, अपने भाइयों से कहने लगा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, आबिद जाओ और अमानत ले आओ,
फिर उसे हम 5 भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। आबिद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात थे, जवाहरात जो उसकी माँ के थे, और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थीं। आबिद ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कनात की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था, बूढ़े बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ आबिद ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीद के बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए आपस के दर पर सवाल करने आ गए। आबिद जो एक रहमदिल और मेहनती इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई इखलाकियात का आगाज था। फिर वो दिन आया जब आबिद ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो अब जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।